علیمہ خان صاحبہ جیو نیوز کی جانب سے ٹویٹ کی گئی جس میں انہوں نے لکھا کہ ہم جنس پرست رچرڈ گرینل کو ڈونلڈ ٹرمپ کا ایلچی مقرر کر دیا گیا ہے. اس پر رچرڈ جنرل نے خود آ کے ری ٹویٹ کیا اس کو اور اس پہ لکھا کہ آئی ول سے اگین فری عمران خان. 26 نومبر کو عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کر چکے ہیں. تو اس معاملے کو آپ کس نظر سے دیکھتی ہیں؟ دیکھیں ہمارے تو وہ پاکستان ہمارا ملک ہے، لیکن یہ فکر جن کو ہوتی ہے، آپ کو پتہ کن کو فکر ہوتی ہے، جو یہاں پہ جو آپ کیا کہتے ہیں جو حکومت میں لوگ ہیں، ان کو زیادہ فکر ہوتی ہے کہ امریکہ کیا سوچ رہا ہے ان کے بارے میں، کیونکہ ان کی انگلینڈ کیا سوچ رہا ہے. اس لیے کیونکہ آپ کے جو حکومت میں لوگ بیٹھے ہیں ان کی جائیدادیں ادھر ہی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں. انہی کے سینیٹرز یہاں اتنا ظلم ہو گیا، اتنی شرمندگی کا باعث ہو گیا ان ملکوں کے لیے کہ ہماری پاکستان کی حکومت کو ان کے لیے شرمندگی ہو گئی ہے. ان کو جو ہمارے اوورسیز پاکستانیوں نے بڑی اس کے اوپر، اب سوچیں ان کے اوپر بھی ہم دھمکیاں دیتے ہیں ان کو فون کر کے. وہ گئے ہیں اپنی حکومت کے پاس، امریکہ ان کی حکومت ہے، انگلینڈ ان کی حکومت ہے، آسٹریلیا ان کی حکومت ہے، کیونکہ وہاں کے یہ نیشنلز ہیں پاکستانی. ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہاں سے یہ ان کو دھمکیاں دیتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ جو پاکستان سے ظلم کر کے ہیومن رائٹس ابیوز کر کے یہاں آتے ہیں، تو یہ والے جو ان کے کانگریس مین اور سینیٹرز کہہ رہے ہیں ان کی یہاں پراپرٹیز بھی کنفسکیٹ کریں، ان کے ویزے بھی کینسل کریں. اور کئی ملکوں کے وہ اس طرح ہی کرتے ہیں. آپ نے یہاں پہ اتنا بڑا قتل عام کر دیا، اسلام آباد میسیکر ہے، اور آپ اس کو کبھی چھپا نہیں سکیں گے. تو ظاہر ہے اگر یہاں پہ انصاف نہیں مل رہا، کیونکہ ہماری تو یہاں آپ کو پتہ ہے عدالتوں میں کیا ملے گا انصاف، تو وہ تو یہ نہیں، آپ کو یہ ان کے اوپر سختیاں بین لگائیں گے ان لوگوں پہ جو ذمہ دار ہیں اس قسم کی ہیومن رائٹس ابیوزز کے لیے. اچھا، رچرڈ گرینل کے علاوہ بہت سے مزید ایسے امریکن لوگ ہیں جو کہ ٹویٹس کر رہے ہیں. کیا کوئی امپیکٹ ہوگا ان ٹویٹس کا عمران خان کی رہائی کو لے کر؟ دیکھیں ٹویٹس کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن بات ساری یہ کہ ان ملکوں کے اوپر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جب آپ ایسے لوگوں کو ویزے دیتے ہیں، کیونکہ یہ ہیومن رائٹس کے چیمپئن ہیں یہ ملک، یہ ہمیشہ بات کرتے ہیں ہیومن رائٹس کی، اور ملکوں میں جب ہوتا ہے تو اس کے اوپر یہ ضرور اس کے اوپر آواز اٹھاتے ہیں. تو ان لوگوں نے پاکستان کے اوپر اتنی حدیں پار ہو گئی ہیں کہ انہوں نے اس کے اوپر آواز اٹھائی ہے، کیونکہ ہمارے وہاں اوورسیز پاکستانی ان کے پاس جا کے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو وہ تو آواز اٹھائیں گے. اگر ان لوگوں کو فکر ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں تو یہ مجھے نہیں پتہ ہے. میڈم یہ بھی بتائیے گا خان صاحب، کیونکہ کل سے یہ چیز جو ہے نا ٹاپ ٹرینڈ بنی ہوئی ہے، جب سے رات سے یہ ٹویٹ ہوا ہے رچرڈ گرینل کا، تو اس کے بعد سے یہ ٹاپ ٹرینڈ بن گئی ہے. اوورسیز پاکستانی اس کو بہت زیادہ اٹھا رہے ہیں. خان صاحب سے، ان کے وکیلوں سے یا آپ سے ان کی کوئی ایسی بات ہوئی ہے؟ خان صاحب نے کوئی جیو نیوز کے بارے میں کوئی بات کی ہو؟ کیونکہ یہ جیو نیوز کا وہ ایک ٹویٹ تھا جس کو انہوں نے ری ٹویٹ کیا. مجھے نہیں پتا، عمران خان کے ساتھ تو کوئی بات چیت نہیں ہوئی. لیکن آپ کو دیکھیں، پہلے آپ اپنا سمجھ لیں کہ اگر ایک وہاں پہ ایک اپوائنٹی امریکہ میں، آپ کو یاد ہوگا ڈونلڈ لو، ہم تو ڈونلڈ لو جو ایک سرکاری افسر تھا ان کی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں، اس کا ایک میسج آیا تھا تو ہم نے حکومت گرا دی تھی. تو یہ تو بہت سینئر آدمی ہے جس نے یہ کہا ہے ریلیز عمران خان. تو اگر ایک وہ سرکاری افسر جو ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا ہے اس کے کہنے پہ اگر ہم راتوں رات حکومت گرانے کی شروعات کر لیں اور جلدی جلدی گرا دیں 3 ہفتے میں یا کتنے 2 ہفتے میں جلدی سے حکومت گرا دی، کس کے کہنے پہ؟ ڈونلڈ لو کے. یہی کہتے ہیں نا. اور وہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کا بندہ تھا. تو جب نئی ایڈمنسٹریشن آئے گی جو یہ نہیں چاہتی کہ اس قسم کی باہر کے ملکوں میں انٹرفیئرنس ہو، تو عمران خان نے ہمیشہ کہا ہے کہ بائیڈن کے جانے سے صرف یہ ہوگا کہ جو باجوہ اور حسین حقانی نے وہاں پہ جا کر بڑی محنت کر کے لابنگ کی تھی، جس کے نتائج میں ڈونلڈ لو کو کے ساتھ انہوں نے یہ مل کے کیا تھا، تو پھر اس حکومت میں وہ نہیں ہوگا جو بائیڈن کی حکومت نے پاکستان کے اندر کیا تھا، جو ہماری معیشت بھی ڈبو دی، ہزاروں لوگوں کو غربت کے لکیر کے نیچے بھی دھکیل دیا. اور پھر آپ دیکھ لیں یہاں پہ سڑکوں پہ جا کے اب قتل عام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو قتل کر رہے ہیں، جو یہ میسیکر کر رہے ہیں، ڈیسپریٹ تو وہ لگ رہے ہیں اس وقت.
क्यों आपको कत्ल करने की जरूरत पड़ी? अलीमा साहिबा यही बताइएगा, खान साहब खुद और पीटीआई भी इस चीज़ की हमेशा से मुखालिफत की है, अमेरिकन इंटरफेरेंस की, तो इस रिचर्ड के मुतालबे को जो कि इमरान खान के हवाले से वो कर रहे हैं, उसको आप जायज़ समझती हैं? उसको क्या क्या कहना चाहेंगे उस हवाले से? ठीक मुतालबा उनका? मैंने आपको फिर से बताया है कि इमरान खान ने क्या कहा है। जब डोनाल्ड लू का साइफर मैसेज आया था, उसके ऊपर पाकिस्तान ने, इमरान खान की हुकूमत ने प्रोटेस्ट करके उसका डिमाश किया था, जिसका मतलब अमेरिकन एम्बेसडर को बुलाकर उसके ऊपर एहतजाज करके वापस मैसेज भिजवाया था कि ये आप हमारे मुल्क के अंदर हमारी आप इंटरफियर कर रहे हैं। तो इमरान खान इसके ऊपर इसलिए कोई कमेंट नहीं कर रहा। अगर देखें, इमरान खान तो कहीं अपील नहीं कर रहा किसी को, ना किसी को फ़ोन कर रहे हैं, ना हमें कभी किसी को कहा है कि फ़ोन करके कहो किसी अमेरिकन को या किसी को। जब आप इतना जुल्म करेंगे तो आप अपने आप को उस जगह पे डाल रहे हैं कि जब एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप, जहाँ दुनिया में ये कोई दुनिया मुल्क नहीं एक्नॉलेज करता, डेमोक्रेसीज़ के लिए ये बात करते हैं, तो अगर पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के अंदर ये होगा कि आप रात को अंधेरा करके कत्लेआम करेंगे, कौन सी दुनिया में आपको मुल्क सपोर्ट करेगा? इसके लिए कोई भी मुल्क नहीं सपोर्ट करेगा। क्या आपकी बार भी खान साहब इस चीज़ को बुरा मानेंगे या फिर इसको कंडेम करेंगे अगर कोई मुदाखलत होती है? मेरी बात सुने, ये मुदाखलत नहीं है किसी, ना वो आपके मुल्क में मुदाखलत कर रहे हैं, उन्होंने भी ट्वीट पे किया है, साइफर नहीं भेजा। मैडम ये भी बताइएगा, खान साहब ने 3 रहनुमाओं की बात की थी कि खान साहब कहते हैं मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, मौलाना फजलुर रहमान, महमूद अचकजई और अख्तर मिंगल। आज खान साहब ने कोई इस तरह की कोई बात की है कि वो अपोजिशन से मिल के? हसन साहब ने कल कहा था कि वो मिलेंगे तीनों, तो खान साहब ने कहा कि मिले। तो जरूर मिले। इमरान खान ने तो बल्कि यहाँ पे तो उनके किसी को अंदर जाने ही नहीं देते, अगर वो आ जाएं तो शायद उनसे उनकी मुलाकात हो जाए। बाकी इनके अपने जो सियासी लोग हैं उनको एक को नहीं मिलने। खान साहब का मोराल कैसा था आज? माशाल्लाह, उनको तो वो तो, हाँ, एक और उन्होंने बात की। आप लोग पूछते हैं जी खान साहब के क्या हालात हैं, उनकी सेहत ठीक है? आज उन्होंने बताया है, उन्होंने कहा कि ये मुझे पीटीवी नहीं देखने दे रहे, कई हफ्ते हो गए हैं। कहते हैं कि उसकी ये तार निकाल के ले गए ना, कई जब ये 23 नवंबर से, तो वो कह रहे थे मैं पीटीवी देखना चाहती था। तो हमने पूछा कि आप खबरें सुनना चाहते? कहते नहीं, मैं क्रिकेट देखना चाहता था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है इन्होंने तार निकाली भी थी, मैं मैचेस नहीं देख सका, नहीं तो दोनों ही मैच हार गए, मैं डिप्रेशन हो जाती मुझे। ये उन्होंने आपने बताया था काफी सख्त हो चुका है, और पिछले दिनों इमरान खान कह रहे थे कि शायद कंबल भी उनको नहीं दिया जा रहा था। अब ये बताइएगा, सवाल लेंगे। पहले सुनते, कंबल उनके पास है जी, कंबल उनको दिया जाता है, रजाई की जेल की SOPs में नहीं है कि रजाई दी जाए। सिर्फ उसका मसला ये है कि वो जो जंगले के ऊपर ये प्लास्टिक की शीट डालते हैं जी, तो वो कह रहे थे कि गैप ऊपर नीचे होता है तो उसकी वजह से हवा ज़्यादा आती है, तो हम उनके लिए अब कपड़े और आए हैं, अब बैग पड़ा हुआ है। एक बहुत बड़ी मुहिम होती है कि जो बैग पड़ा होता है डिप्टी सिप्तान विर्क के कमरे में, हम उस बैग को, कई दिन की मुहिम होती है कि वो कपड़े अब इमरान खान तक कब पहुँचते हैं, ये अलग बात है। अच्छा, इमरान वैसे माजी में जब मरीम नवाज पटियाला जेल थी तो वो कह चुकी हैं कि मैं कपड़े भी खुद इस्त्री करती थी, फ्राई पान से करती थी। इमरान खान कैसे करते? देखिए मेरी बात सुनिए, आप इर्रेलेवेंट की तरफ चले जाएं। नहीं, वैसे एक सवाल है। वैसे मैं बात करूँ, आप याद रखें वो 1.5 साल से जेल में बैठे हैं जी। वो मरीम नवाज के पास बहुत बड़ा कमरा था, अटैच बाथरूम, टाइलें लगा हुआ, पूरा किचन पूरा चलता हुआ, पूरा इतना बड़ा सहन। याद रखें इमरान खान एक चक्की के कमरे में है और छोटे से कमरे में है और आइसोलेशन में है। इस जेल में 12 घंटे आप अंदर बंद होते हैं, 12 घंटे आप बाहर होते हैं। हम रोज जेल में जाते हैं, आप यहाँ के देखें, लोग इकट्ठे बाहर बैठे होते हैं, फिर रहे होते हैं, पूरी जेल में लोग खुले फिर रहे होते हैं। इमरान खान आइसोलेशन में अंदर एक इलाके में बंद है जहाँ पे कहते हैं सिक्योरिटी की वजह से अगर हम कोर्ट में ना जाएं तो इमरान खान की किसी से कोई मुलाकात की इजाज़त नहीं है। आप याद रखें 1.5 साल हो गया। आप इमरान खान की हिम्मत और उनका जो जज्बा है वो सबके लिए इंस्पिरेशन है। आप उनको देखा करें, वो हंसते हुए आते हैं। कल जो लोग आए ना ATC कोर्ट में, वो परेशान हो गए देखे कि एक जवान इंसान माशाल्लाह माशाल्लाह निकल रहे हैं, क्योंकि उनका ईमान बड़ा मजबूत है। हमारे लिए वो इंस्पिरेशन है। जब आप देखें वो हंस के ये बातें कई दफ़ा बता रहे होते हैं, परेशानी में नहीं बता रहे। और
जो उनको टीवी में देखने थे तो वही तो कह रहे हैं। चलो शुक्र है, अगर चार होती और मैं मैच देख लेता तो दोनों मैच हम हार गए तो मुझे डिप्रेशन ही हो जाता। अच्छा अलीमा साहब लास्टली बताइएगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि इमरान खान को ये ऑफर की गई है कि कौमी हुकूमत बना लें, कोई ऐसी कोई बात हुई है ना? मेरी बात सुनो, दो मुतालबात है इमरान खान के, वो मैंने आपके सामने रख दिए। ये जो मर्जी कर लें, ये खुद फंसे हुए हैं सारे लोग। हमें देखें, वो जो हमने देखे ना, खुद हमने आई विटनेस है जो हुआ है। आपको मैं ये बता दूं कि ये कौम इस वक्त बड़े गुस्से में है और ये इस किस्म की जो मर्जी फजूल बात करें, ये फजूल बातें हैं। अब ये बात सियासत की नहीं हो रही, अब ये बात हो रही है कि आप हम लोगों को सड़कों पे आके मारेंगे, आप हम लोगों को, हम निकलेंगे, औरतें बच्चे वहाँ सब खड़े थे और ऊपर से छुप के मारोगे हमें। आओ और सामने आके जिसने मारने आके मारे, और देखिए पाकिस्तान की कौम इतनी ना डर है इनके अंदर, लेकिन जो जुल्म है ये अब बर्दाश्त नहीं होगा। पिशावर में जो इज्तिमा हुआ शोधा के हवाले से, उस पर खान साहब को बताया गया, क्या कहना था? बिल्कुल उनको बताया गया कि वहाँ पे भी इज्तिमा और भी बड़ी जगह पे हुआ है, दुनिया में सब जगह। क्या कहना था खान साहब? बिल्कुल उन्होंने कहा, उनके लिए वो कह रहे नहीं, और इनको आप उनकी फैमिलीज को मिलें, हमें भी कहा है आप उनको मिलें। वो बहुत जो एक लाइन क्रॉस जो बहुत ज़्यादा हो गई है ना इमरान खान के लिए। मैं आपको सिर्फ ये बता दूं, जो उनका मूड देखा है, मैं आपको वैसे असेसमेंट दे रही हूँ, हमारी फैमिली बात कर सकती है। एक ऐसी लाइन क्रॉस हो गई है कि अब इमरान खान की जो डिटर्मिनेशन है ना, जो उन्होंने बड़े सब्र से, यकीन करें हम सबके सब्र ख़त्म हो गया, उन्होंने सब्र से काटा है और जुल्म भी सह लिया, लेकिन जो उनकी तकलीफ है ना, जो शोहदा की, वो बहुत ज़्यादा है। और वो अब वो डायरेक्शन खुद दे रहे हैं कि कैसे चलना है और कैसे फैसले। नीमा खान साहिबा, ये 2 रोज कबल इस्लामाबाद की अदालत के बाहर से 400 लोगों को जो रिहा किया गया था, दोबारा गिरफ्तार किया गया, जबकि क़यादत में से एक भी बंदा वहाँ पर मौजूद नहीं था। क्या ये भी खान साहब को बताया गया कि इस तरह वर्कर्स को लावारिस छोड़ दिए गए? मैं आपको बताती हूँ, ये जो लॉयर्स खड़े हैं ना, उनको लीड जो सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं वो हमारे लॉयर्स माशाल्लाह यंगस्टर्स हैं, यहाँ खड़े भी हैं, ये भी यहाँ खड़े भी हैं। सारे लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, कंबल पहुँचा रहे हैं लोगों को, कपड़े पहुँचा रहे हैं और सब लगे हुए हैं। और एक आप देखें, जो एक कम्युनिटी का काम होता है, आप हमेशा उसको अप्रिशिएट करें कि पाकिस्तान में ये चीज़ हमें सीखने वाली है कि हमने मिल के काम करना है। आप सारा वक्त इंतजार करते हैं कि मेरे ऊपर कोई अब्बा अम्मा आगे बैठे तो फिर मैं कुछ करूँगा। हमारे यंगस्टर्स, हमारे जवान, हमारे बुजुर्ग सब मिलकर, अब पाकिस्तान बहुत बड़ा एक डोनर मुल्क है, बहुत खुले दिल के लोग हैं और बड़े जज्बे वाले हैं। जेलों में सामान भी पहुँचा रहे हैं, ट्रेन हो गए। हमारे यंग लॉयर्स सारे जेलों के बाहर खड़े होते हैं, ILF वाले सारे जाके एक एक जेल इन्होंने लिस्टें, आपको पता हजारों लॉयर से पूछें, वो बताते हैं। एक जेल में जाते हैं, पता चलता है वो किसी और में जान के उनको सैरें करा रहे हैं कैदियों कि ढूंढ के इन लोगों ने जितनी मेहनत से लिस्टें तैयार की हैं, उनको आइडेंटिफाई किया है, उनके रिश्तेदारों का ख्याल रखा है। यकीन करें, इतने हजारों का ख्याल रखना नहीं। अभी जो ये जो 26 तारीख को इन बच्चों ने माशाल्लाह, हमें फख्र करना चाहिए कि हमारी जवान नस्ल इनको तो हम इनकी हमें अप्रिशिएट इनको तो बिल्कुल हम देख रहे हैं। 5-6 लोग आप कैसे हैं जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन क़यादत नजर नहीं आती है। तो वो पकड़े जाते हैं, तो कहते हैं आप ना ही आओ।